Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our chapter that is the digestion and absorption next lecture video, that is the small intestine you can say. Okay, so very important lecture will be there. So ध्यान देने की बात है यहाँ पे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे. इट इज अ स्मॉल इन डायमीटर. ओके, और जो पार्ट के बारे में बात करें तो पूरा एलिमेंट्री कैनल को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो स्मॉलर इंटेस्टाइन जो है ये सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है. ठीक है, साइज भी दे के रखी है ऑलमोस्ट 6.25 मीटर. ओके, 6.25 मीटर लॉन्ग. ठीक है. और इसके तीन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट जो है वो डिओडेनम है, देन जेजेनम एंड देन इलियम. ओके, सो टोटल देयर आर थ्री पार्ट्स. तो ठीक स्टमक के बाद जो चालू होने वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट डिओडेनम. इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज द शॉर्टेस्ट यू कैन से, वाइडेस्ट होता है. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सी शेप स्ट्रक्चर. फाइन. और सबसे खास बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है the hepatopancreatic ampulla. Okay, the hepatopancreatic ampulla, that is called as ampulla of Vetter, which opens into the duodenum now. Okay, तो hepatic का bile juice and the pancreatic का pancreatic juice, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे ही duodenum में open करके pour की जाएगी. Okay, which going to help in the further digestion process. Now this ampulla receives both the bile duct from the liver and the main pancreatic duct from the pancreas, as I told you before. और जो खास बात है डिओडेनम की वो है कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है यही से. ओके, डिओडेनम रीजन से. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द जेजनम, जो कि 4 सेंटीमीटर होता है साइज में. ओके, और इसकी जो वॉल होती है इट इज थिक वॉल स्ट्रक्चर एंड द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग होता है. कितना होता है? 2.5 मीटर लॉन्ग. ओके, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. सो लेट्स प्रोसीड इनटू द थर्ड पार्ट नाउ, that is called as the ileum. The diameter is 3.5 centimeter. Okay, the wall is very thinner and it is the longest part of the intestine, जो कि 3.5 मीटर होता है. Okay, सबसे बड़ा एरिया यही होता है इलियम का. Now both jejunum and ileum are greatly coiled structure. ये भी आप लोग एक ध्यान में रखना. ठीक है, small nodules of the lymphatic tissue can be seen along the entire length of the small intestine. Okay, lymphatic word हो रहा है मतलब kind of little you can say immune kind of response will be there. Okay, in some particularly in some places particularly along the ileum, these nodules are clusters together in a group called as a pairs, patches, or you can say lymph nodules. Okay, note, pairs patches are distinguishing characteristic features of the ileum and which provides or which produces the lymphocytes. जैसे कि type of WBC मैंने आप लोगों को कहा ये हमारे immune system के जैसे काम करते हैं. ठीक है, finger like projection आपको देखने मिलेंगे of the mucosa. You can say the villi are present on the small intestine. अगर मैं बोलूँ this, suppose this tube like structure you can see over here, it's a small intestine structure. Okay, तो इनके अंदर ये ऐसे villi like structure आपको देखने मिलेंगे. Fine, this is what I mean actually. नेक्स्ट, द विलाई आर एब्सेंट ओवर द पेयर्स पैचेस. तो पेयर पैचेस के ऊपर आपको जो है विलाई देखने नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट, the villi increases the surface area of the small intestine. What does the villi do? It increases the small surface area. Okay, ताकि जो फूड है वो काफी अच्छे से आगे मूव ऑन करते जाए और एब्जॉर्प्शन जो है वो काफी अच्छे से परफॉर्म किया जाए. ओके, each villus is covered by epithelium and contains a lymph capillary जिसको कहा जाता है lacteal, and the blood circulars will be seen over there, that is nothing but the walls, you can say walls of Kerking also. Okay, they further increase the absorptive surface. ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाती है. तो विलाई का नॉर्मली फंक्शन क्या है? तो दे इंक्रीजेस द मोर सरफेस एरिया. इन शॉर्ट आपको इतनी ही ध्यान में रखनी है बातें. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस को देखो, इजीली आप लोग समझ जाओगे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड विल बी टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ. ओके, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड एंड द lymph. It secretes the certain hormones such as see choleocytokinin, then secretin will be there, enterogastrones will be there, diokinin will be there, enterokinin will be there, and then wilkin will be there. Okay, so ध्यान देना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके स्क्रीन पे. कोलियोसाइटोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्टेरोन, डियोक्राइनिन, फिर एंट्रोक्राइनिन एंड द विलाइकिन. Okay, so these are the important enzymes which will be secreted by the intestine. Also secrete some digestive enzymes. Now let's talk about the intestinal glands. Okay, before entering into the intestinal glands, let's enter into the diagram now. Okay, see one particular diagram. See this diagram, you have to understand many things from this diagram. Then only you can understand the location and the secretions.
ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को विलाई का डायग्राम दिखाया हुआ है। ऊपर अगर विलाई देखोगे थोड़े से कम है साइज में, नीचे देखोगे तो उनके बीच का स्पेस जो है वो ज्यादा है। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख रहे हो विलाई का, इसको एब्जॉर्टिव पार्ट कहा जाता है, और जो नीचे है उसको सिक्रेटरी पार्ट कहा जाता है। सिक्रेटरी इसलिए क्योंकि वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंपल लॉजिक है, लगा सकते हो। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लेयर्स आप लोगों को यहीं पे देखने मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सेल्स है जिनको कहा जाता है गॉबलेट सेल्स। ओके, कॉलमनर सेल्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। यहाँ पे जो आप लोग स्पेस देख रहे हो इसको कहा जाता है लिफ्ट क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन। Then argentaffin cells will be there at the basal region. Paneth cells will be seen over here. Okay, and there is a, you can say, this area which you see normally, which is little bit embedded more. Okay, इनको Brunner's gland कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है इसको? ब्रूनर ग्लैंड। सो अभी हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे? ब्रूनर ग्लैंड को लेकर बात करेंगे, पानित सेल्स को लेकर बात करेंगे, अर्जेंटाफिन सेल्स के सिक्रेशन को लेकर बात करेंगे, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोएंस एंड ऑब्वियसली द गॉबलेट सेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली द इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर लुक लाइक। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। So see the glands of the intestine, okay, these are formed by the surface epithelium। तो ये surface area के जो cells होते हैं epithelial cells, उन्हीं के modifications है जो कि small intestine में देखने मिलेंगे। ये खास करके दो ही टाइप होते हैं, बेसिकली these are only of two types, जिनको generally क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन एंड द ब्रूनर ग्लैंड्स के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो अभी क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन को देखो, इसी के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखे थे। okay, so it is a simple tubular structure present throughout the small intestine between the villi। okay, तो between the villi आपको ये देखने मिलेगा। they secrete the digestive enzymes and mucus is secreted by the goblet cells। सिंपल सी बात है, इतने देर से अभी हम लोगों ने काफी सारा फिजियोलॉजी देखा है ना, इसमें एक बात तो क्लियर हो गई, तो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस सिक्रेट करके देते हैं। ओके, water and electrolytes are present or secreted by the enterocytes। okay, water and electrolytes जो presented होते हैं ये secrete किए जाते हैं by the enterocyte cells। okay, present on the intestinal crypts। these crypts that have, you can say, base, पैनिथ सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स। तो अभी ये क्रिप्स क्या है, तो इन शॉर्ट पैनिथ सेल्स एंड अर्जेंटाफिन सेल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पैनिथ सेल्स को देखते हैं। As you can see, now topic has been started with respect to the Paneth cell। These are found particularly in the duodenum part। Okay, तो duodenum में सबसे ज्यादा आपको Paneth cells देखने मिलेंगे। These cells actually present in the bottom of the crypts of Liber Cohen। Okay, now these are very rich in the zinc and contain acidophilic granules and secrete the lysosomes, which are, you can say, antibacterial substances। Okay, और अर्जेंटाफिन सेल्स के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, दे सिंथेसाइज और सिक्रेटिंग हार्मोन, क्या बनाते हैं वो लोग? सिक्रेटिन हार्मोन बनाते हैं। और एक और हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ओके, 5 HTP इसको डिफाइन किया जाता है। और नेक्स्ट ब्रूनर सेल्स के बारे में बात करते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड को लेके। these are found in only in the duodenum and are located in the submucosa layer। ओके, मतलब म्यूकोसा के ठीक अंदर वाली लेयर। they secrete a little enzyme and mucus। the mucus protect the duodenal part, okay, from getting digested। digestion of the most nutrient takes place in the duodenum under the action of various enzymes। okay, जो डाइजेशन होता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का वो स्टमक से सीधा, देखो स्टमक में भी डाइजेशन होता है। इन शॉर्ट वो सारी बातें फिर सेमी स्लरी बना के उसको डिओडनम में पोर किया जाता है। तो डिओडनम के अंदर भी फर्दर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर डाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, द ब्रूनर ग्लैंड्स ओपन इनटू द क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन। नाउ the secretion of the intestinal glands is called as a intestinal juice। okay, या फिर इसको सक्कस एंट्रिकस कहा जाता है। तो सक्कस एंट्रिकस का मतलब क्या है? सारे ग्लैंड जो अपना अपना सिक्रेशंस बनाते हैं इंटेस्टाइन में, उस पर्टिकुलर जूस को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस, जो कि पीएच होता है 7.8 का। 2 से 3 लीटर जो पूरे दिन में इसका सिक्रेशन हो ही जाता है। ठीक है, नाउ सी एंजाइम क्या क्या हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं, जैसे कि माल्टेज हो गए, आइसोमाल्टेज हो गया, सुक्रेस हो गया, लैक्टेस हो गया, अल्फा डेक्ट्रीनेस हो गया, एंट्रोकाइनेस, अमाइनोपेप्टिडेस, डाइपेप्टिडेस, न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस, इंटेस्टाइनल लाइपेस। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, फैट्स टूट रहा है ना, न्यूक्लिक एसिड टूट रहा है। ये सारी बातें जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपको इंटेस्टाइन में देखने मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट, द एंटायर एलिमेंट्री कैनल हैज अ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, क्योंकि पूरा जो है वो लुब्रिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ओनली थिंग्स कैन मूव वेरी इजीली इन द बॉडी, राइट? द that produces the mucus function is lubrication। now what is that on the screen?
सी नोट आ गया ना, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मेनी एसेसरी ऑर्गन्स, जैसे कि टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियास होती है, एंड सम इंपॉर्टेंट ह्यूमन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। ये क्या है? ये सारे ह्यूमन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। ओके, नेक्स्ट, ये तो डायग्राम मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर जो होता है वो है 1.5 मीटर। डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। ओके, और जो इसका टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग। बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलॉन एंड द रेक्टम। ओके, सीकम, कोलॉन एंड द रेक्टम। सीकम एंड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जैसे कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट लेट्स टॉक अबाउट वन डायग्राम ओवर हियर। ओके, तो ये रहा एक इंटरेस्टिंग सा काफी अट्रैक्टिव डायग्राम है आपके स्क्रीन पे। अभी इसको एनालाइज करो। काफी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है जो कि ऑलरेडी आपको समझने आ चुकी है। ओके, जैसे कि देखो, ओरल कैविटी के बारे में बात हो चुकी है, टंग के बारे में बात हो चुकी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑल दो सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यानी थ्री पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर आल्सो। देन देयर इज अ pharynx, राइट? Then there is a cervical part, that is the neck region. Then thoracic part, there is a chest region and abdominal part which we are like already discussed. और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि स्टमक के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग काफी सारे ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इतना जो पार्ट है वो इसोफेगस पार्ट था, ठीक है। और जो नीचे है वो है डायफ्राम, देन लीवर, देन गॉल ब्लैडर, राइट? ऑल दिस थिंग येट टू डिस्कवर्ड। ओके, मतलब येट टू डिस्क्राइब। ओके, पैंक्रियास इज येट टू कम नाउ। नाउ सी, as you can see the green color structure, this is the large intestine over here। तो हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग यहाँ पे हैं सीकम एंड अपेंडिक्स रीजन पे, ठीक है। फिर हम लोग इसको बात करेंगे, फिर इलियम को लेके बात करेंगे। ओके, सॉरी इलियम नहीं, कोलॉन को लेके बात करेंगे, क्योंकि इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, और जेजनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आप लोग देख रहे हो पिंक कलर की शेडिंग डाल के रखी है, और यहाँ पे हाईलाइट एरिया पे भी बताया है इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया। ओके, then we will be talking about this horizontal green color structure जिसको कहा जाता है transverse colon। okay, and then there is a descending colon, and then there is a sigmoid colon। okay, फिर anal canal, and then there is a anus। okay, before anal canal there is a rectum is also there। ओके, जहाँ पे हमारा जो फीकल मैटर है वो स्टोर किया जाता है। तो ये सारी लोकेशंस आप लोगों ने देख ली होगी ठीक तरीके से। आई होप यू अंडरस्टूड विच टॉपिक वी आर करंटली डिस्क्राइबिंग। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन ओवर, नाउ वी आर ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो अपेंडिक्स एंड सीकम वाले एरिया पे है अभी हम लोग, ठीक है। डायग्राम देख लिया, सारी चीजें दिमाग में फिट हो गई। अभी इजी हो जाएगा आप लोगों को चीजों को समझने के लिए। देखो, तो सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर about 6 centimeter in diameter, and vermiform appendix is called as an appendix region only। it is an outgrowth of the cecum। okay, हमारे बॉडी में ये जो है ये वेस्टिजियल है, पहले काम करता था, अभी काम नहीं करता। पहले काम क्या करता था? सेलुलोज डाइजेशन को, क्योंकि सेलुलेज एंजाइम बना करता था। अभी ये सारी बातें नहीं होती, इट इज जस्ट अ वेस्टिजियल पार्ट। ओके, इट इज स्लाइटली कॉइल्ड ब्लाइंड ट्यूब, जिसको 8 सेंटीमीटर बड़ा माना गया है। ओके, और यहाँ पे अगर अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ इन्फ्लेशन वगैरह हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस भी कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस, ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रख सकते हो आप लोग। The cecum and the appendix are very well developed in the herbivores mammals like rabbits। okay, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कोलॉन की तरफ। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, आपको कोलॉन को तीन पार्ट्स देखने मिले, राइट? ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पे द कोलॉन, मतलब द सीकम लीड्स टू द कोलॉन। ओके, लीड्स इनटू द कोलॉन which is divided into four regions। okay, ascending, transverse, descending and the sigmoid। yes, sigmoid को कंसिडर करेंगे तो टोटल 4 कोलन के पार्ट बनते हैं। ओके, जिसको पेल्विक कोलन भी कहा जाता है अर्लियर। लेकिन ये जो पेल्विक कोलन है ना, ये पहला वर्ड था असेंडिंग कोलन का। ओके, इनिशियल वर्ड वाज द असेंडिंग कोलन को हम लोग पेल्विक कोलन भी कहा जाते थे, जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है कोलन का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कोलन हैज लॉन्गिट्यूडनल, 3 longitudinal bands called as a टेनियाई कोलाई एंड द स्मॉल पाउचेस कॉल्ड एज अ हाउस्टेरा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा बात है, अगर याद रखना है तो रखो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं रेक्टम की तरफ। द सिग्मोइड कोलन ओपन्स इनटू द रेक्टम, और रेक्टम का टोटल लेंथ अगर बात करूं तो 20 सेंटीमीटर होता है। इट इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच टर्मिनेट्स इनटू द 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनल। ओके, the opening of the anal canal is called as the anus। the anus has an internal sphincters। okay, anal sphincters जो कि composed होते हैं smooth muscle fibers and
एक्सटर्नल एंड स्पिंचर्स कंप्राइज ऑफ सी स्ट्राइटेड वॉलेंट्री मसल फाइबर। क्या देना है, इंटरनल की बात करें तो इंटरनल स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि स्ट्राइप्ड वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ओके, और इंटरनल जो स्मूथ होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। यस, दिस इज द एरिया वेयर द क्वेश्चंस विल बी कमिंग। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या बात करें, ये तो बहुत सिंपल है समझने के लिए। देखो, चीफ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्टेज। तो जब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर वगैरह जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पोर किया जाता है, तभी इट इज लाइक अ स्लरी टाइप। ओके, लेकिन जैसे ही ये स्लरी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव ऑन करने लगती है, तो ज्यादा करके पानी जो है वो यहीं पे एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो फिर सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होते 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 आगे बढ़ जाता है। ओके, so finally it gets converted into solid waste. Okay, however the moderate quantities of the vitamin K and the vitamin B complex are manufactured by the bacteria in the large intestine only. Okay, तो जैसे कि विटामिन के का बनना एंड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो बनना होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो हमारे लिए मदद करके देते हैं। ओके okay? So that what we completed the large intestine. Now we are proceeding with respect to the pancreas in the today's lecture. So see, it is a soft part, you can say, lobulated structure, grayish pink color gland होता है, okay, जो कि stomach के ठीक नीचे present होगा। इसका जो weight होता है that is a 60 grams, 2.5 centimeter wide होता है, 12 to 15 centimeter long होता है। okay, stomach के नीचे लेकिन posterior side में, okay, posterior to the stomach. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या बात करें, इट इज मेड अप ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हेड, नेक, बॉडी एंड द टेल। तो ये डायग्राम देखो, इससे बेटर आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। सी, हेड, नेक, बॉडी एंड द टेल रीजन, सो टोटल 4 पार्ट्स विल बी सीन इन केस ऑफ द पैंक्रिया। अब पैंक्रिया जो है ना, ये ग्लैंड जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना ये क्वेश्चनेबल एरिया है। ओके, काफी ज्यादा फंक्शंस भी है इसके। तो सी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, तो दो तरीके के डक्ट आपको पैंक्रियास में देखने मिलेगा, एक तो मेन होता है पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरा होता है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो सी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट द डक्ट ऑफ वेरसंग भी कहा जाता है, तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ वेरसंग। ओके, नाम याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट विद इन द पैंक्रियास, it opens into the hepatopancreatic ampulla, that is ampulla of the Vater, you can say. Okay, इट इज फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट विद इन द पैंक्रियास, लेकिन ओपन हो जाता है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुलर रीजन में, दैट इज एम्पुला ऑफ द वेटर। और जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जिसको डक्ट ऑफ सैंटोरिनी भी कहा जाता है, वो सीधा ओपन हो जाएगा डायरेक्टली इनटू द डियोडेनम। ओके, मतलब यहाँ पे अगर हिपैटोपैंक्रियाटिक नाम आ गया है, मतलब लिवर में से आने वाली डक्ट और पैंक्रिया में से जाने वाली डक्ट, ये दोनों आपस में फ्यूज होके हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, या फिर हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला कहा जाता है। ओके, और इसकी जो ओपनिंग होती है जो कि डियोडेनम में होती है, जिसको कहा जाता है एम्प्यूला ऑफ वेटर। ठीक है, इतना सिंपल है, आपको समझना ही है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये अगर मैं सेक्शन ले लूं, पैंक्रियास का क्या ले रहा हूं मैं, सेक्शन ले रहा हूं, तो मुझे इसके अंदर बहुत खास चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर बाहर से आप लोग ये स्ट्रक्चर को फोकस करोगे, ये फ्लावर लाइक दिखने वाले स्ट्रक्चर जो येलो कलर में दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है पैंक्रियाटिक एसिनाई, दिस आर एक्सोक्राइन पार्ट। ओके, बाहर है ना तो एक्सोक्राइन पार्ट। ओके, और ये जो पिंक कलर का यहाँ पे हाईलाइट किया, दिस इज अ पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, सो एक्सोक्राइन पार्ट में क्या आता है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, क्योंकि ये जो पैंक्रिया है इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड माना गया है। ओके, तो एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है फिर इसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस खाली एक बंच नहीं होता है, मतलब एक ही सेल नहीं होता है, उसके अंदर मल्टीपल सेल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सेंटर में काफी सारे सेल्स देखने मिल रहे हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। जैसे कि ग्रीन कलर के सेल्स के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो अल्फा सेल्स कहलाते हैं। ओके, येलो कलर के सेल्स को हम लोग बीटा सेल्स कहेंगे। ये जो थोड़ा सा पीच कलर टाइप आप लोग कलर देख रहे हो उसको डेल्टा सेल्स कहेंगे। ठीक है, फिर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जिनको कहा जाता है, एंड यस ऑब्वियसली देयर इज अ ब्लड सप्लाई विल बी देयर। ओके, सो दिस सो मेनी सेल्स टुगेदर विल बी कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। अभी एंडोक्राइन बोलने से क्या समझ में आता है कि ये लोग हार्मोन सिक्रेट करके देंगे। क्या करके देंगे, हार्मोन सिक्रेट करके देंगे। तो क्या क्या ये लिस्ट है, अभी हम लोग इसको डिस्क्राइब करना चालू कर रहे हैं। तो as you can see our topic has been started with the title called as a internal structure. It is of two parts, exocrine part सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है, जिसको एसिनाई कहते हैं। It is a round lobule like structure, I had already shown you in the figure. Okay, ये सीक्रेट क्या करते हैं, तो अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस जिसका पीएच होता है 8.4 यानी बेसिक। ओके, सिक्रीशन कितना होना चाहिए, 500 to 800 ml होता है पूरे दिन में। 500 to 800 ml जितना सिक्रीशन पूरे दिन में निकलता है। ओके, carried by the main pancreatic duct into the duodenum through the hepatopancreatic ampulla. This accessory pancreatic duct
directly pours the pancreatic juice into the duodenum. ओके, द पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स, अभी पैंक्रेटिक जूस एक्चुअल में होता क्या है, तो ये देखो ये सारा सिनारियो आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी के साथ में देयर आर टोटल 3 प्रो एंजाइम्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जो कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड द प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और और एंजाइम्स की खाली बात करें, देखो प्रो एंजाइम्स यानी इनिशियली दीज आर इनएक्टिव, इनको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, और कुछ एंजाइम्स है जो कि ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इलास्टेस, पैंक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, डीएनएस, आरएनएस, पैंक्रेटिक लाइपेज, ओके, जो कि क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं क्या करने के लिए, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, ऑल दोस थिंग्स, न्यूक्लिक एसिड आल्सो, ओके। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे सारा हार्मोन रिलेटेड बात आएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके। इट इज अबाउट 1 मिलियन आइलेट्स, देखो कितने प्रेजेंट है, 1 मिलियन, कम है क्या, बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूमरस इन द टेल पार्ट, तो खास करके पैंक्रिया के जो 4 पार्ट है जिसमें टेल पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सेल्स व्हिच सीक्रेट्स द हार्मोन्स टू बी पास्ड इनटू द सर्कुलेटरी ब्लड, ओके, मतलब इन शॉर्ट ब्लड में सारे हार्मोन्स को डिपॉजिट करना होता है, ओके। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ रहा है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग सेल जिसको कहा जाता है अल्फा सेल्स, ओके। टोटल 15% प्रेजेंट होते हैं पूरे चारों में से, ये सबसे ज्यादा, मतलब कितना, 15% ये प्रेजेंट होंगे। इसका काम क्या है, ग्लूकागॉन बनाना, फॉर्मेशन सी ऑफ ग्लूकागॉन, लेकिन कन्वर्ट क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, किसको कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। अगर मान लो बॉडी में शुगर कम है और हमको शुगर चाहिए, तो तुम्हारा ग्लूकागॉन काम करेगा, मतलब अल्फा सेल काम करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में, और ये सारी प्रोसेस कहां देखने मिलेगी, लीवर के अंदर देखने मिलेगी। इसलिए इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट टेक डाउन एज अ क्वेश्चन, ओके, डायबिटोजेनिक हार्मोन्स के नाम से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बीटा सेल्स कहा जाता है नेक्स्ट वाली कैटेगरी को, जो कि टोटल 65% यानी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, इंसुलिन बनाने का, ठीक है। तुमको पता है जब हमारे बॉडी में शुगर की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी इंसुलिन काम करता है उसको मेंटेन करने का, मतलब क्या हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ना है और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, और बाद में वो ग्लाइकोजन को लीवर और मसल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शुगर ब्रेकडाउन नहीं होगा, शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, ओके। क्या कंडीशन आ जाएगी, डायबिटीज मेलिटस कंडीशन आ जाएगी, ध्यान देना इस बात के ऊपर, क्वेश्चन था वो, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, आधी से ज्यादा चीजें आपको पता भी है। अगेन द इंसुलिन रिलेटेड थिंग्स मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी बताया है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेल्टा सेल, ये तीसरा कैटेगरी आ रहा है, टोटल 5% यानी सबसे कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं, क्या सीक्रेट कर रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन सेल्स, ओके, मतलब हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स। देखो सोमैटोस्टैटिन का नाम पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताऊंगा, ओके। तो देखो इनका नाम से ही पता चलता है कि ये इनिबिट करते हैं, इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन बाय अल्फा सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द बीटा सेल्स। अगर जरूरत हो चुकी है, काम हो चुका है, तो एक्सेस सिक्रीशन क्यों करते रहने का, उनको स्टॉप भी तो करना है ना, तो इनिबिशन हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, दैट इज द सोमैटोस्टैटिन बाय द डेल्टा सेल्स, ठीक है। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब क्या, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, ठीक है, जहां से न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में पोर किए जाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी ये स्टोमेटोस्टैटिन मदद करता है, लेकिन एक नोट आ रहा है स्क्रीन पे, ये एक नोट नहीं रहेगा, इसमें इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स है, तो इसको समझो, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टोमेटोस्टैटिन सीक्रेटेड बाय द अर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सप्रेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके, काम इसका रुकाने का ही है, देखो। तो सी somatostatin also secreted by the hypothalamus region of the brain which inhibits the release of the growth hormone जिसको कहा जाता है सोमैटोस्ट्रोपिन, ओके, ग्रोथ हार्मोन होता है ना सोमैटोट्रोपिन, इसके इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ओके। या फिर पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग डील करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आएगा ही, जैसे कि क्लास 11 का तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है नहीं, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, दैट इज इन द क्लास 12, वहाँ पे इंसुलिन के बारे में भी बात होगी। और यहाँ पे आ गया है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया जाएगा, कौन सीक्रेट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको बंद करना पड़ेगा, ओके। तो ये सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करके देता है वो ट्रिगर करता है एंटीरियर पार्ट को, ताकि ये बंद हो जाए, ठीक है। It's a kind of, you can say, negative feedback mechanism also, okay, that is why it is also called as a growth inhibitor hormone, fine। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे वाले सेल्स के पास, दैट इज अ फोर्थ सेल, दैट इज अ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, जिसको पीपी सेल्स भी कहा जाता है या फिर एफ सेल्स भी कहा जाता है। इसका टोटल 15% होता है, सीक्रेट क्या करता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इसलिए पीपी नाम आ गया इसको, विच इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस।
तो दो हार्मोन आप लोगों ने ऐसे सीखे जो इनिबिट करते हैं चीजों को, ठीक है। दस द पैंक्रियाटिक पैंक्रिया परफॉर्म टू फंक्शंस, एक तो सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस जो कि डाइजेशन में मदद करेगा, और दूसरा हार्मोन्स जो कि बाकी सारी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगा, है कि नहीं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो आने वाला जो लेक्चर है वो है लीवर के बेसिस पे, तो लीवर वाला जो सिनेरियो है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है आज का वो खत्म होता है। कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ओके। टिल pancreas we had completed everything, just go through your textbook word to word, that is very important, okay। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, टेक केयर, बाय बाय।